and welcome to VLearn. This is Virtual Learning Network. This is session number 7, Turing Machine of Theory of Automata. Topic to be covered are Turing Machine, Instantaneous Description and Transition Diagram, Hard State of TM versus Set of Final State of FA and PDA. So at the very beginning the first question arises, what is Turing Machine? Basically Turing Machine कैसी होती है? Turing Machine हमारे पास बहुत अच्छी एक कंप्यूटेशनल मॉडल होता है जिसकी हेल्प से हम लोग मोर जनरल एप्लीकेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं. लाइक हम इससे जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है उसको सॉल्व कर सकते हैं. सो now move to this particular slide. Computation is an universal as it is phenomenon of motion. In order to have better understanding of phenomenon of motion, we think of different approaches, use some model and formulate some principle. देखिए अभी तक हम लोगों ने different मॉडल्स पढ़े, FA पढ़ा, PDA पढ़ा. सो उन सबसे ज़्यादा भी हमारे पास क्या चाहिए था? हमें एक जनरल मॉडल चाहिए था. जो हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा होता था वो सिर्फ रेगुलर लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता था. फाइन जो हमारे पास PDA होता था वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता था. सो जो मोर कॉम्प्लेक्स ग्रामर आती थी लाइक A raised to the power n, B raised to the power n, C raised to the power n, जिनको सॉल्व करना अभी तक पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, उन सब ग्रामर को हम लोग ट्यूरिंग मशीन से सॉल्व करते हैं. नाउ ट्यूरिंग मशीन, बिफोर गोइंग दिस here we explain finite automata क्या करता था, पुश डाउन ऑटोमेटा क्या करता था और नई रिक्वायरमेंट क्या रही. सो फाइनाइट ऑटोमेटा कंप्यूटेशनल मॉडल इज कंप्यूटेशनली इक्विवेलेंट टू रेगुलर लैंग्वेज मॉडल जो रेगुलर ग्रामर को ही सॉल्व करता था. तो पुश डाउन की बात करते हैं तो पुश डाउन वो था जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता था, और जो पुश डाउन ऑटोमेटा है और इक्वली कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज मॉडल इज मोर पावरफुल. देखिए जो हमारे पास पुश डाउन होता था वो मोर पावरफुल होता था एज कंपेयर टू हमारे पास फाइनाइट कंट्रोल, बिकॉज पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर हमने एक एक्स्ट्रा यूनिट यूज की थी, दैट इज मेमोरी यूनिट, जिसकी हेल्प से हम लोग कुछ सिंबल्स को उसमें स्टोर करवा के रख सकते थे जो x raised to power n और y raised to the power n को सपोर्ट करता था. सो सिमिलर इज रिटन इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. सो जो हमारे पास PD होता था, पुश डाउन ऑटोमेटा मॉडल इज मोर पावरफुल computational model in comparison to finite automata model in the sense that every language accepted by finite automata is also recognized by push down automata. However, there are languages via the language x raised to power n, y raised to the power n, where n belongs to n, which are recognized by push down automata but not by finite automata. Now Turing machine, so जो x raised to power n है, y raised to the power n है और z raised to the power n है, उस टाइप की लैंग्वेज को हम लोग Turing machine से सॉल्व कर पाते हैं. So there are languages including x raised to the power n, y raised to the power n, which are not accepted by push down automata, now can be accepted by our Turing machine. So basically this promotes us to discuss another still more powerful automata model and corresponding grammar model of computation. कौन सी रखा गया? Turing machine रखा गया. So Turing machine TM is the next powerful model as we have already discussed. ये हमारा next powerful model रहा of automata approach which recognize more languages than push down automata model and also past structure model in corresponding geometrical model that matches Turing machine in computational power. So here देखिए अब हम ट्यूरिंग मशीन की बात करते हैं. तो यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं जो हम इसमें यूज करने वाले हैं. TM for Turing machine, Q for states, so that we symbol that all symbol that we have going to use in this particular Turing machine. So now Turing machine definition. So Turing machine is 6 tuple. Turing machine में बेसिकली हमारे पास 6 tuple होते हैं. One is Q, set of state. Second is the set of blank symbols. 5 होता है हमारे पास. नेक्स्ट मूवमेंट होती है जिसमें L, R and N होगा, where L defined
जो होता है हमारे पास डिफाइन करता है लेफ्ट मूव को, आर डिफाइन करता है राइट मूव को, एंड डिफाइन करता है हमारे पास नॉट एनी मूव। बेसिकली देखिए हम लोग टीएम की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक फाइनाइट इनफाइनाइट टेप होता है। जब हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करते थे और पुश डाउन ऑटोमेटा की बात करते थे तो हमारे पास इनपुट टेप होता था, वो फाइनाइट रहता था। फाइन, अब ट्यूरिंग मशीन में जो हमारे पास इनपुट टेप रहता है वो फाइनाइट नहीं होता है। सेकेंडली, हम इसमें जो हमारा हेड की मूवमेंट होती है, जो सिंबल रीड करने की मूवमेंट होती है, वो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों साइड हो सकती है। सो जो नेक्स्ट मूव है वो लेफ्ट में भी जा सकता है, राइट में भी जा सकता है और नॉट एनी मूव भी हो सकता है। और हर बार जब हमारे पास फाइनाइट कंट्रोल कोई सिंबल को इनपुट से रीड कर रहा है तो उसको चेंज करता है किसी अनदर सिंबल से। सो सिंबल चेंजिंग भी यहाँ रहता है। सो in another words, Q, I, Q and AK there exist always because of partial function sum QJ, Q and sum QI such that QI AK goes to QJ I and X. So यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कुछ ना कुछ मोशन होता है। हमारे पास एक इनिशियल स्टेट होती है। नाउ फाइनल स्टेट इज नाउ रिप्लेस्ड विद हाल्ट स्टेट। हाल्टिंग प्रॉब्लम क्या होती है, होल्डिंग प्रॉब्लम बेसिकली क्या रहेगी, जहां पे आके हमारी मशीन जो है अनदर वर्किंग को स्टॉप कर देती है। हियर इज एन एग्जांपल। देखिए हमारे पास टेप है। इस टेप में हम लोग लेफ्ट से भी मूव कर सकते हैं, आप राइट से भी मूव कर सकते हैं, कोई मोशन नहीं भी दिखा सकते। हर बार कुछ हम लोग रीड करेंगे तो हम उसको किसी ना किसी अनदर सिंबल से रिप्लेस करेंगे। सो हियर इज द कंडीशन, इफ रीड 1, हम इसमें से 1 रीड करते हैं, राइट 0 एंड गो राइट। जब भी हम लोग रीड 1 करेंगे तो हम उसको 0 से रिप्लेस करेंगे और राइट की तरफ मूव करते रहेंगे। इफ रीड 0 होता है तब राइट 1 और हाल्ट कर जाएगा। इफ रीड देन राइट 1 एंड हाल्ट। देखिए फर्स्ट कंडीशन में उसने 1 रीड किया था, रिप्लेस्ड विद 0 एंड मूव टू राइट। अगेन 1 है तो राइट में मूव करेगा, अगेन 1 राइट में मूव, अगेन 1 राइट में मूव। जब 0 आ जाता है तो राइट 1 और हाल्ट। 0 आ गया, मूव करना बंद कर दिया, हाल्ट स्टेट पे पहुंच गया। हाल्ट स्टेट वो कंडीशन है जिसपे ऊपर आके हमारी जो ट्यूरिंग मशीन है वो अपनी वर्किंग को स्टॉप कर देती है। इसके बाद इसकी वर्किंग स्टॉप हो गई। सो द सक्सेसर आउटपुट 1 1 1 0 1। देखिए जो हमने इनपुट डाले थे 0 0 0 1 1, नाउ आउटपुट इज 1 1 1 1 0 1। सो दिस इज द रिवर्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 48। सिमिलर द सक्सेसर ऑफ 127, हम इसका सक्सेसर निकाल सकते हैं। हेयर देखिए हम लोगों ने कंडीशन दी है, इफ हम 1 को रीड करते हैं तब राइट 0 एंड गो टू राइट। इफ रीड 0 रीड करता है तो राइट 1 और हाल्ट स्टेट हो जाएगी। सो हेयर 1 रीड किया, रिप्लेस विद 0, अगेन रीड 1 रिप्लेस विद 0, 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 अगेन 1 नल आता है तो उसको 1 से रिप्लेस कर देगा और खत्म कर देगा। फाइन, नाउ इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन। So here the flowing difference in the role of tape and tape head of the finite and push down automata is on one hand। देखिए एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जो हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा और हमारे पास पुश डाउन ऑटोमेटा होता था, जो उसमें हेड मूव रहता था वो सिर्फ एक डायरेक्शन में रहता था। बट जब हम लोग ट्यूरिंग मशीन की बात करते हैं, जो हेड का मूव है वो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों हो सकता है। सेकेंड डिफरेंस की बात करते हैं, द सेल ऑफ द टेप ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा और पीडीए आर ओनली रीड स्कैन बट नेवर चेंज्ड। देखिए अभी हमने क्या किया था, हम लोग करे थे इफ रीड 1 रिप्लेस विद 0, तो उसमें क्या हो रहा था, एक सिंबल को स्कैनिंग भी की जा रही है और रिप्लेसिंग भी की जा रही है। ऐसा हमारे पास एफए और पीडीए में नहीं होता था। नाउ the tap head of FA और PDA always move from left to right, as we have already discussed। जो इसका टेप हेड होता था हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करता था। नाउ जो इसका टेप हेड है वो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट दोनों साइड मूव कर सकता है। अनदर डिफरेंसेस की जो हमारे पास PDA और हमारे पास FA होता था, बेसिकली वो फाइनाइट टेप होती थी। नाउ वी हैव अ इनफाइनाइट टेप। So as a consequence of fact mentioned in 1, 2 and 3 above, we conclude that in the case of FA and PDA, the information in the tap cell already scanned, not
do not play any role in deciding further move of the automata, but in case of TM, the information content of all cells, including the ones earlier scanned, also plays a role in deciding further moves. The leads to slightly different definition of configuration or instantaneous description in the case of TM. So the total configuration, or for short just configuration of TM machine, is the information in respect of the content of all cells on the tab, the cells currently being scanned and some. देखिए अब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, लेफ्ट मूव रहेगा, राइट मूव रहेगा और अभी कौन सी चीज़ इसने स्कैन की है. सो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, द टोटल कॉन्फ़िगरेशन एट द स्टार्ट ऑफ द ट्यूरिंग मशीन इज कॉल्ड इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन. नाउ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है? सो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की जब हम लोग बात करते हैं, सो the total configuration at the start of the Turing machine is called initial configuration. अभी initial का मतलब क्या होता है? starting में वो कैसा है, that is known as initial configuration. जब हम लोग hearted configuration की बात करते हैं, so is the configuration whose state component is hard state. Next, there are the various basically notations used for devoting the total configuration. So these are the some of the notations हम लोगों ने दिखाया. हमारी जो ट्यूरिंग मशीन है उसके अंदर नल देन बी डी ए एफ, ये मेरे पास एक टाइम पे कॉन्फ़िगरेशन है. हमारी जो ट्यूरिंग मशीन है वो इस टाइम पे Q3 स्टेट पे है. सो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस वे में? हम इसको बहुत सारे वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लाइक जहाँ पे हम लोग करंट है वहाँ पे हम लोग एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं करंटली हम इस स्टेट पे है. सो द ट्रांजैक्शन डायग्राम ऑफ द नेक्स्ट मूव फंक्शन ऑफ टीएम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. हम लोग ट्रांजैक्शन डायग्राम की बात करते हैं. लाइक हम लोग ट्रांजैक्शन डायग्राम पीडीए में भी बनाया था, एफए में भी बनाया था. तो ट्रांजैक्शन डायग्राम बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका नेक्स्ट मूव कैसा रहेगा. फाइन. सो द ट्रांजैक्शन डायग्राम ऑफ नेक्स्ट मूव फंक्शन ऑफ टीएम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंसिस्टिंग ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ नोड्स एंड लेबल्ड आर्क बिटवीन द नोड्स. ईच नोड रिप्रेजेंट अ स्टेट ऑफ टीएम. हर एक नोड इसकी टीएम की स्टेट को रिप्रेजेंट करता है. उसमें मोशन कैसा है, वो लेफ्ट में रीड करेगा या राइट में रीड करेगा, वो सब कुछ दिखाया जाता है. सो द एक्शन पार्ट कंसिस्ट ऑफ अ सिंबल से y टू बी रिटन इन द करंट सेल. करंट सेल में y लिखा जाएगा एंड द मूवमेंट ऑफ टैप, और टैप की मूवमेंट कैसी रहेगी, लेफ्ट में रहेगी या फिर राइट में रहेगी. हियर सपोज m मेरे पास मशीन है जिसमें स्टेट्स है Q नोट H और अनदर सिंबल टाओ फाई आता है, जिसमें Q जो मेरे पास स्टेट्स है उसमें Q नोट, Q1, Q2 एंड H है. और हमारे पास सिंबल्स जो रीड किए गए हैं Q एंड 1 है सिग्मा के अंदर, और जो हमारे पास टाउ है उसमें 0, 1 एंड नल आ सकता है. सो हमारे पास इनपुट के अंदर क्या आ सकता है, 0, 1 एंड नल आ सकता है. Q नोट पे 0 रीड किया तो कुछ नहीं हुआ, Q नोट पे 1 रीड किया तो कुछ भी रीड नहीं हुआ. Q नोट पे जब नल रीड कर रहा है तो उसको वो Q2 स्टेट में जा रहा है. सो किसी से रिप्लेसमेंट नहीं है और राइट में मूव कर रहा है. Q1 स्टेट के ऊपर जब 0 रीड हो रहा है तो क्या कर रहा है, वो Q2 स्टेट पे जा रहा है, अगेन रिप्लेसिंग 0 विद 0 ओनली एंड गोइंग टू राइट. Q1 स्टेट पे जब नल रीड हो रहा है, अगेन Q1 स्टेट पे जब 1 रीड हो रहा है तो वो Q1 स्टेट पे जा रहा है, रिप्लेसिंग विद नल एंड मूविंग टू राइट. जब Q1 स्टेट पे नल रीड हुआ तब क्या हुआ, हार्ड स्टेट में पहुंच जाता है, रिप्लेसिंग नल विद नल एंड नॉट एनी मोशन. सो देखिए जो इसका ट्रांजिशन है उसमें हम लोग 3 चीजों का ध्यान रखते हैं. करंट स्टेट पे कौन सी है, सिंबल को किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और किस चीज से रिप्लेस कर रहे हैं, फाइन, और नेक्स्ट मूव कैसा रहेगा. सो हियर इज द फिगर. Q नोट स्टेट पे जब वो नल रीड कर रहा है तो वो रिप्लेस कर रहा है नल को नल से एंड मूव टू राइट. Q2 स्टेट के ऊपर हियर इज द Q2 स्टेट, इफ 0 रीड कर रहा है देन 0 इज रिप्लेस्ड विद 0 एंड मूव टू लेफ्ट.
सो जो इसका ट्रांजैक्शन डायग्राम है, हमने हर एक आंख के ऊपर 3 सिंबल्स को रिप्रेजेंट करना है। 1 क्या स्कैन किया है, किस चीज से रिप्लेस किया है, और कहाँ मोशन दिखाना है। सो हियर इज द ट्रांजैक्शन फिगर। नेक्स्ट, हार्ड स्टेट ऑफ TM वर्सेस फाइनल स्टेट ऑफ PDA एंड FA। नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि जब हम लोगों ने फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करते तो हम लोग फाइनल स्टेट बोलते थे। फाइन, अब हम जब ट्यूरिंग मशीन की बात करते हैं तो हम लोगों ने फाइनल स्टेट को हार्ड स्टेट में चेंज कर दिया। सो क्या डिफरेंस रहा हार्ड स्टेट में और हमारे पास ट्यूरिंग मशीन में? सो ट्यूरिंग मशीन की हार्ड स्टेट में और फाइनाइट मशीन की final states में। So move to this particular slide. The tap is taken as output irrespective of whether the position of head is at the end or the middle of the string on the tap. देखिए जो ट्यूरिंग मशीन में जो हमारे पास टेप के अंदर जो आता है वो हम लोगों ने एज आउटपुट कंसीडर किया है, ऐसा हम लोग FA और PDA में नहीं करते थे। However, an FA or PDA while scanning a symbol, the input tap if enters to the final state can still go ahead as it can do on entering a non-final state with the repeated activities of moving to right or scanning the symbol under the head and entering a new state etc. देखिए अब हमारे पास हार्ड स्टेट में क्या होता है, जहाँ पे आके हमारे ट्यूरिंग मशीन ने फर्दर सारे प्रोसेसिंग को बंद कर दिया। फाइन, जब हम लोग FA और PDA की बात करते थे तो उसमें क्या होता था, इनपुट टेप से सारे के सारे सिंबल्स को रीड करता था। बट हमारे पास जब हम लोग ट्यूनिंग मशीन की बात कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर सिंबल से चेंज करता है और हर एक जहाँ पे हार्ड पोजीशन आ जाती है दैट इज अवर आउटपुट। सो इन केस ऑफ FA एंड PDA द पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द सिंबल अंडर टेप हेड इज एक्सेप्टेड इफ द state is final state and not accepted if the state is not a final state. Here is another difference to move clear. We repeat the only difference of two situation when a PDA and FA enters a final state and when it enters a non-final state. That in the case of first situation the part of the input scan so far is said to be accepted, recognized, whereas in the second situation, the input scan so far is said to be unaccepted. Of course, in the final state version of TM, the head is allowed movement even after entering a final state. Some definite statement like acceptance, recognized can be made if this is a version of TM in a final state. Next, modular कंस्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्यूरिंग मशीन। देखिए अब हम कॉम्प्लेक्स ट्यूरिंग मशीन की बात कर रहे हैं तो नाउ वी आर बेसिकली joining two and more Turing machine to form a big Turing or complex Turing machine. So now move to this particular slide. In this session we look at the task of constructing complex Turing machine by combining already constructed Turing machine. As we have already discussed कि हम इसमें क्या करेंगे, जो ऑलरेडी बनी हुई Turing machine है उनमें से कुछ Turing machine को आपस में ज्वाइन कर देंगे. So for this purpose we discuss some basic machines and rules for combining already constructed machine into more complex machine. Also we develop notation for expressing the involved rules and devoting the process of combining. So we begin with giving the rules of combining Turing machine to get more complex TMs for already constructed Turing machine. Let M be a TM which is to be constructed by combining the already constructed machine M1, M2, Mk. So एक हमारे पास मशीन है जिसमें Q, सिग्मा, टाउ, डेल्टा, Q नोट एंड H है. अनदर मशीन है जिसमें हमारे पास Q, I, सिग्मा I, डेल्टा I, मतलब सारे के सारे सिंबल्स. दो मशीन है हमारे पास, तो हम उसको कैसे कैसे कंबाइन कर सकते हैं. देयर आर सम रूल्स. सो
Then the rules for constructing M and TMI are: assume all the state Q1, Q2, Qk are all mutually disjoint sets. If they are overlap, then rename the element of some sets so that the set are mutually disjoint. Secondly, the state Q0, the initial state of M1 will be the initial state of M, that is Q0 is equal to Q0 1. बेसिकली हमने दो मशीन को जोड़ना है, एक है सपोज करो M1 है, एक है हमारे पास M2. सो एक के सारे सिंबल Q1 से जो स्टेट्स हैं Q1, देन डेल्टा 1, फाई 1, सेकेंड है हमारे पास Q2. सो हम लोगों ने इसको जोड़ना है तो दोनों की इनिशियल स्टेट हमारे पास सेम होनी चाहिए. रूल थर्ड कहता है द हार्ड स्टेट स्टेटस ऑफ ईच HI is equal to I is equal to 1, 2, 3 K is removed a new state of H including the Q. Next does the flowing rules. Q को हम लोगों ने यूनियन कर दिया. Here is rule 4. Now combine. दो मशीन को कंबाइन कर दिया M1 एंड M2 को, दोनों की इनिशियल स्टेट सेम रहेगी, हार्ड स्टेट इनकी प्रोड्यूस हो जाती है. सो द कंप्लीटनेस ऑफ डिटेल ऑफ जनरल रूल्स फॉर obtaining a composite machine out of already designed machine as component. However, there may be some special rules for designing each particular composition. Now modular construction, how it constructed. Here is a machine. So some basic machine and notations. Hard state होती है, Q नोट कैसे मूव करेगा. So left move, right move and motion. So a machine which goes on moving to a right except it meets a specific criteria. वो right में जब move करेगी जब वो specific criteria. Where we denote a symbol negation of A or denoted by this. This is our negation. ऐसे तो है right में move करेगी और ऐसे हम लोगों ने उसका negation को denote कर दिया. So here is also now question for all of you people. At the very beginning my first question is construct a TM that copies a given string over AB. Further find the computation of TM for a string AAB. Differentiate between FA, PDA and TM. So today we will wind up our session here. Next we will discuss in our next class. Till then, happy learning, we learning.